Good morning, friends. Jai Mata Di, friends. Friends, I'm Girish Paliwal, and in this video lecture, we will talk about figures of speech. Friends, it was the demand of my friend, and who requested me to explain these figures of speech uh, in an easy language. So, friends, I am trying here, and before going to start these figures of speech, I would like to present a line in front of you. It's also a quotation which has been given in Julius Caesar. And Julius Caesar, friends, you know, it has been written by William Shakespeare. Friends, here we have a quotation, otherwise we can say a line. It's Greek to me. It's Greek to me. It means it is Greek to me. Friends, it means it also comes under the category of figures of speech, we can say, which is difficult to understand, which is difficult to understand, that will be called Greek to me. Suppose I don't know English, I do not know English, so I will speak. If someone is speaking in front of me and I'm unable to understand his or her language, so I will say there, it's Greek to me. English is Greek to me. It means it is difficult to understand me. यानी कि उसको समझना मेरे लिए क्या है, कठिन है. इंग्लिश मुझे नहीं आती, कहने का मतलब है मेरे लिए डिफिकल्ट है. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इट्स ग्रीक टू मी. टू स्पीक, otherwise to understand English is Greek to me. Okay, friends, now we would like to talk about figures of speech. And you know, friends, figures of speech are used to decorate the language. I have already made 2 videos on figures of speech. In one video I have talked about simile and metaphor, and second video I talked about antithesis, paradox, oxymoron and irony. And friends, I'm trying my level best in this video and hope that you will understand everything after this video. Friends, in this video we will talk about chiasmus, antithesis, paradox and oxymoron. Friends, these are the figures of speech which make us confused, we can say. We are unable to identify. Suppose we have given a line and we will not be able to identify that line, means what kind of figures of speech have been given there in this particular line. So friends, after this video, it's my promise you will identify easily their figures of speech. So first word we have here, first figures of speech, chiasmus. And friends, you know chiasmus, antithesis, oxymoron and paradox. तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं chiasmus से. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है chiasmus, CHIASMUS. तो पहला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, इट मीन्स फ्रेंड्स इन chiasmus फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड इन सेकेंड हाफ. यू हैव गिवन हियर फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड. हियर फ्रेंड्स यू कैन सी फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड, फर्स्ट हाफ इज रिवर्स इन सेकेंड हाफ. जो पहला हाफ होता है वो रिवर्स हो जाता है सेकेंड हाफ पे. जैसे पहला हाफ जो हमने कह रखा है उसका सेम उल्टा. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल है, फ्रेंड्स वी हैव एग्जांपल, नेवर लेट अ फूल. फ्रेंड्स वी हैव एग्जांपल हियर, नेवर लेट अ फूल किस यू. नेवर लेट अ फूल किस यू और अ किस फूल यू. तो फ्रेंड्स पहले वाले में कह रहा है अ फूल किस यू, दूसरे वाले में अ किस फूल यू. यानी कि अ फूल किस यू देखिए आप क्या कह रहे हैं, नेवर लेट अ फूल, यानी कि किसी फूल को क्या न करने दो, किस यू. और अ किस फूल यू इसका अपोजिट, यानी कि अपोजिट नहीं बोलेंगे, रिवर्स हो गया. वहाँ पे अ फूल किस यू है, वहाँ पे अ किस फूल यू. तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा इससे, यहाँ पे अपोजिट नहीं होगा, जो क्लॉज है वही रिवर्स पड़ जाएगा. सेकंड एग्जांपल फ्रेंड्स, इफ यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर, सॉरी यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर. क्या है फ्रेंड्स, यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर.
यू फॉरगेट आप भूल जाते हैं, व्हाट यू वांट टू रिमेंबर जो आप याद करना चाहते हैं, एंड यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट जो आप याद करना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो भूलना चाहते हैं वो ही आपको याद हो जाता है, कहने का मतलब। तो आप देखिए, आप पहला यहाँ पे जो पहला हमारा जो पहला हाफ है, यू फॉरगेट व्हाट यू वांट टू रिमेंबर, आप भूल जाते हैं फ्रेंड्स उसको यू वांट टू रिमेंबर, जिसको आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू रिमेंबर, जिसको आप याद करना चाहते हैं, ठीक है। एंड यू रिमेंबर व्हाट यू वांट टू फॉरगेट, यहाँ पे देखिए यू वांट टू रिमेंबर, यू वांट टू फॉरगेट, कहने का मतलब है ये रिमेंबर करना चाहते हैं आप उसको फॉरगेट कर जाते हैं, और जो फॉरगेट करना चाहते हैं उसको रिमेंबर हो जाता है आपको वो चीज़। यानी कि जो चीज़ आप भूलना चाहते हैं वो तो आपको याद हो जाती है, और जो आप याद करना चाहते हैं वो आप भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्लॉज क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। देखिए जो पहला क्लॉज है उस दूसरे क्लॉज पे क्या हो जा रहा है, पहला क्लॉज जो है उसका दूसरा वाला जो क्लॉज है सेकंड क्लॉज उसका रिवर्स हो जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कियाज्मस कहलाएगा। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो है आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे क्लॉज जो है रिवर्स पड़ेगा, अपोजिट नहीं होगा, रिवर्स होगा। अपोजिट क्या होता है, जैसे डे है तो नाइट, इसको अपोजिट बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड तो वही है, वर्ड हमारे वही हैं, बस उनका ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। देखिए पहले वाले में नेवर लेट अ फूल, अ फूल यहाँ पे क्या है, नाउन है। फूल किस यू, किस का मतलब क्या है, वर्ब है। अब दूसरे में कह रहा है अब किस फूल यू, अब किस फूल यू। अब दूसरे वाले में जो किस है वो क्या ना बना दे आपको फूल, यानी कि आपके साथ चीट ना कर दे, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे क्लॉज क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। पहले वाले में दूसरे एग्जाम्पल को देख सकते हैं, यू फॉरगेट, आप भूलते हैं ना, व्हाट यू वांट टू रिमेंबर, व्हाट यू वांट टू रिमेंबर, व्हाट का मतलब है यहाँ पे जो, तो जो आप चाहते हैं, वांट टू रिमेंबर, टू रिमेंबर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं 2 + V1 आपका इन्फिनेटिव भी है। जो आप याद करना चाहते हैं वो तो आप भूल जाते हैं, और जो भूलना चाहते हैं वो आपको याद हो जाता है। सेकंड वाले में देखिए यू रिमेंबर, आपको याद होता है, ठीक है, आप याद कर लेते हैं, कहने का मतलब आपको स्मरण रहता है। व्हाट यू वांट टू फॉरगेट, जो आप भूलना चाहते हैं। तो क्लॉज क्या है, रिवर्स पढ़ रहा है। आप इसको इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और देख सकते हैं, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं रहेगा कियाज्मस में। कियाज्मस का मतलब है जो क्लॉज हैं वो रिवर्स पढ़ते हैं वहाँ पे, यहाँ पे अपोजिट वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक। दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच है उसकी बात करें तो यहाँ पे है एंटीथेसिस। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को, एंटी, यहाँ पे आपका क्या है, एंटी और थेसिस। थेसिस मीन्स होती है कल्पना, इमेजिनेशन, ये आइडिया बोल सकते हैं, ठीक। और जो एंटी है इसका मतलब है अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो आप विचार जो व्यक्त कर रहे हैं वो क्या पड़ जाते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। पहला वाला जो है वो दूसरे के अगेंस्ट हो जाएगा, यानी कि उसके विरुद्ध हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे आपका जो इसकी डेफिनेशन बनती है, टू अपोजिट आइडियाज इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस होता है उसमें दो अपोजिट आइडियाज होते हैं, ठीक है, फॉर अ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है उनका, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट करना, यानी कि बोल सकते हैं हम क्या करना, उसमें क्या करना, यानी कि ये उसके अगेंस्ट पड़ जाना, ठीक है, यानी कि उसके विरुद्ध पड़ जाना, खिलाफ हो जाना, ठीक। तो एंटीथेसिस का मतलब होता है यहाँ पे आपको जैसे वर्ड से क्लियर हो रहा है, थेसिस जो है उसके एंटी हो जाना, एंटी मीन्स अगेंस्ट हो जाना, जो आपका आइडिया है उसके अगेंस्ट हो जाना, जो आपका विचार है उसके अगेंस्ट पड़ जाना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको हम बेहतर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे, एग्जाम्पल यहाँ पे है फ्रेंड्स, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। फ्रेंड्स मैंने बोल दिया सपोज स्पीच इज सिल्वर, अब क्या होगा, सामने वाला क्या कह रहा है, बट साइलेंस इज गोल्ड। अब स्पीच अगर सिल्वर है तो साइलेंस क्या हो गया, गोल्ड हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या चीज़ मेंशन करनी है, ध्यान देने योग्य जो चीज़ है वो है स्पीच। स्पीच है, ये साइलेंस है। क्या दिख नजर आ रहा है आपको, स्पीच का मतलब क्या है, बोलने से, और साइलेंस का मतलब क्या है, शांत रहने से, यानी कि बोल सकते हैं अपोजिट। यहाँ पे वर्ड, लेकिन इनके स्टार्टिंग वर्ड जो है अपोजिट होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्लॉज ही है, इसमें भी पहला जो क्लॉज उसमें था रिवर्स होना, इसमें अगेंस्ट होना। जैसे स्पीच सिल्वर है तो साइलेंस क्या है, गोल्ड है,
अगर बोलना क्या है, सिल्वर है, उसको कंपेयर कर दिया किससे, सिल्वर से कंपेयर कर दिया, तो शांत रहने को किससे कंपेयर कर दिया, गोल्ड से। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आप देखिए फ्रेंड्स, दूसरे एग्जांपल में भी आपको ऐसे दिया गया यहाँ पे, यूनाइटेड एंड डिवाइडेड। यूनाइटेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड। बट यहाँ पे टू वर्ड्स पुट टुगेदर नहीं है फ्रेंड्स। आप देखना, एक यहीं पे फिगर ऑफ स्पीच है, वी हैव ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच एंड ऑक्सीमोरन। इसके अगला वाला ये है, टू अपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर, दो अपोजिट वर्ड्स। यहाँ पे यूनाइटेड डिवाइडेड एक साथ नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस है, पहला जो हाफ है यानी कि जो पहला क्लॉज है वो दूसरे क्लॉज के रिवर्स ना होके अगेंस्ट हो रहा है। पहले वाले में रिवर्स था, दूसरे वाले में अगेंस्ट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और शांत रह के अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे आप इजीली कर लेंगे। इसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे टू अपोजिट वर्ड्स आर नॉट पुट टुगेदर, यानी कि दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ नहीं है। स्पीच साइलेंस नहीं दे रखा है आपको, यूनाइटेड डिवाइडेड नहीं दे रखा है। अगर एक साथ आएंगे तो ऑक्सीमोरन होगा। यहाँ पे आपको सेंटेंस में दे रखा है, पहला हाफ है, दूसरा हाफ है। अब देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड बिफोर। कहने का मतलब है यूनाइटेड जब हम जुड़ के रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो हम क्या रहते हैं, स्टैंड रहते हैं। एंड डिवाइडेड, जैसे हम बिखर जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यानी जैसे हम अलग अलग हो जाते हैं तो बिखर जाते हैं, कहने का मतलब। तो ये था हमारा एंटीथेसिस। फ्रेंड्स, एंटीथेसिस भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अगला जो हमारा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, मैं अभी लास्ट में इन चारों को कंपेयर कराऊंगा आपको। तो दूसरा क्या है, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर साइड बाय साइड। अब जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, कॉन्ट्राडिक्ट करना, विरोध का आभास करना, ठीक है, विरोधाभास बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है फ्रेंड्स, एक अलग यहाँ पे की सेंटेंस बोलूँगा, वर्ड नहीं बोलूँगा, आपके लिए मैं लेके आया हूँ। टू अपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर, ये पुट है फ्रेंड्स, PUT, पुट टुगेदर। जब टू अपोजिट वर्ड्स को क्या किया जाता है, पुट, यानी कि एक साथ रखा जाता है, साथ साथ रखा जाता है, तो वो ऑक्सीमोरन होता है। ऑक्सीमोरन तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीमोरन आपका क्लियर है, कियास्मस आपका क्लियर है, तो आप फिर आपको दो चीज़ें देखनी है उसमें, एंटीथेसिस होगा या फिर आपका पैराडॉक्स होगा। तो अभी वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप पहले कियास्मस को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पहला हाफ जो है सेकंड हाफ का रिवर्स होगा। और जो ऑक्सीमोरन है, ऑक्सीमोरन में क्या होता है, टू अपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर होते हैं। फ्रेंड्स, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। ऑक्सीमोरन में आपको कहीं से कहीं तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू शुडंट हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन इन ऑक्सीमोरन। ओके, ही इज एन ओपन सीक्रेट फॉर मी। एग्जाम्पल वी हैव, वो क्या है मेरे लिए, ओपन एंड सीक्रेट फॉर मी। ओपन भी है, सीक्रेट भी। ओपन मीन्स खुला, सीक्रेट मीन्स बंद, यानी कि रहस्य। तो टू अपोजिट वर्ड्स हो गए ना, ओपन यानी कि क्लोज या सीक्रेट, एक ही चीज़ तो है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा क्या है, यू आर। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, यू आर सीरियसली है ना, फनी। आप सीरियस भी हैं और फनी भी, पॉसिबल है, बट है आप सीरियसली फनी है। सेंटेंस भी सही है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में। तो क्या है, पहला वो क्या है मेरे लिए, एक ओपन सीक्रेट है, एक खुले सीक्रेट की तरह है, एक खुला हुआ रहस्य बोल सकते हैं, उसकी तरह है। रहस्य था लेकिन अब क्या हो गया, ओपन हो चुका है, कहने का मतलब। अब सेकंड वाले में क्या है, यू आर सीरियसली फनी। आप फनी हैं, फनी वाली कैटेगरी में भी कैसे हैं, सीरियसली फनी है, ठीक है, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। तो अगला जो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, इट इज़ ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, आपको पता है दो पार्ट है अलग अलग। ट्रेजिडी क्या होता है, सैड एंडिंग, और कॉमेडी क्या होता है, हैप्पी एंडिंग। तो दोनों वर्ड्स एक साथ आ गए, ट्रेजी कॉमेडी। तो ये भी क्या है, ऑक्सीमोरन है। दे हैव लव हेट रिलेशनशिप। लव भी है, हेट भी है, झगड़ा भी है, कहने का मतलब है, और प्यार भी है, यानी कि एक दूसरे से थोड़ी नफरत भी है, थोड़ा प्यार भी।
तो पॉसिबल है, जायज़ है ये, आप समझ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रेजी कॉमेडी है, आपको ट्रेजी कॉमेडी, टू अपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर, एक साथ है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कुछ और दिया गया है। लव है, हेट है, अपोजिट है, लव हेट। वाइज फूल, ही इज वाइज फूल। अब वो ही इज फूल, फूल है लेकिन वाइज फूल है, फूल में भी क्या है, वाइज वाला फूल है, ठीक है। ये कहने का मतलब है ऑक्सीमोरन है फ्रेंड्स। ऑक्सीमोरन में तो कहीं से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टू अपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर, कहीं पे भी मिले, इफ you find these kind of word anywhere, so you should not have any kind of doubt in this figure of speech. That will be surely क्या होगा, oxymoron होगा, ठीक है फ्रेंड्स। hope you will have understood this figure of speech as well. next फ्रेंड्स behavior। अब अगला जो हमारे पास है यहाँ पे पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पैराडॉक्स है यहाँ पे अ स्टेटमेंट दैट अपीयर टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। अब जो अपोजिट वर्ड पुट टुगेदर, ऑक्सीमोरोन, पहला हाफ, फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड ऑफ सेकेंड हाफ इज कियाज्मस एंड फ्रेंड्स एंटीथेसिस वी हैव ऑलरेडी टॉक। उसमें क्या होगा, जो वर्ड्स हैं क्लॉज के वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे स्पीच सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, बताया था आपको अभी ऊपर एग्जांपल दिया था। तो अब रहा पैराडॉक्स। तीन चीज़ें हमने समझ ली, तीन में से मेरे को लगता है दो चीज़ें तो आपकी बिल्कुल एकदम क्लियर हैं, कियाज्मस एंड ऑक्सीमोरोन। अब पैराडॉक्स एंड एंटीथेसिस में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन वो भी आपको इस फिगर ऑफ स्पीच को यानी कि समझने के बाद, देखने के बाद वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अ स्टेटमेंट दैट अपीयर टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। फ्रेंड्स 2 + B1 क्या बताया था, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट नॉट नन, ओके। DONE डन, NONE नन, DON डॉन, NON नॉन। सो फ्रेंड्स फाइनाइट और नॉन फाइनाइट उस पर बना रखी है मैंने। नॉन फाइनाइट की 3 टाइप्स आपको वहाँ पे बता रखे हैं। पहला क्या होता है, जेरंड, दूसरा होता है इन्फिनिटिव, तीसरा होता है पार्टिसिपल। एंड पार्टिसिपल की भी कैटेगरीज होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको ये जो डाउट है इससे रिलेटेड, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है, आपके वो सारे डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए ज़रूर। तो अगला जो हमारा है लास्ट, यहाँ पे हम बोलेंगे, हमने यहाँ पे अभी तक कितने डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है हमने यहाँ पे सीरियल नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ी कर रखी है। कियाज्मस हमारा फर्स्ट है, एंटीथेसिस दूसरा है, ऑक्सीमोरोन थर्ड है एंड पैराडॉक्स फोर्थ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फोर्थ हमारा ये पैराडॉक्स, ये लास्ट है इस वीडियो में जो हम फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, दैट अपीयर कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है। ये होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, मिथ्या का आभास होता है। यहाँ पे क्या होता है, मिथ्या का आभास, वो विरोध का आभास होता है, यहाँ पे मिथ्या का आभास होता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है। मिथ्या आभास यानी कि झूठ का आभास, मिथ्या, मिथ्या आपने सुना होगा वर्ड, झूठ, मिथ्या बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है, वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, ऑल एनिमल्स आर इक्वल। फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, ये आपको पता चल गया होगा, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, कोटेशन भी याद रखना है आपको। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का है 1945, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। तो आप इस लाइन में देखिए, फिगर ऑफ स्पीच आपको फाइंड करने हैं। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे एनिमल्स क्या हैं, इक्वल हैं, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन द अदर। जो कुछ एनिमल हैं वो क्या है, मोर इक्वल हैं कह रहा है देन द अदर। जो दूसरे एनिमल्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा इक्वल हैं कह रहे हैं। अब ये कैसे है फ्रेंड, ये मिथ्या का आभास होगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, पहला सेंटेंस जो बोल रखा है, दूसरा सेंटेंस उससे भी बड़ा चढ़ा के बोल दिया जा रहा है।
पहला सेंटेंस है देखो, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, ठीक है, सारे एनिमल्स एक समान है। अब बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, अब उसमें से कुछ एनिमल क्या है, कह रहा है मोर इक्वल है, कह रहा है मोर इक्वल देन अदर, जो अन्य एनिमल हैं, जो एनिमल्स का एक ग्रुप है उसमें जो कुछ एनिमल्स हैं वो अन्य एनिमल्स की तुलना में क्या है, मोर इक्वल हैं, कह रहे हैं कहीं ज़्यादा उनके समान है। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ऐसा लग रहा है आपको सेंटेंस से कि क्या हो रहा है, पहला सेंटेंस जो बोला जा रहा है, जो क्लॉज बोला जाता है उसी पे दूसरा क्लॉज बड़ा चढ़ा के बोल दिया जा रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखिए दूसरा, इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल फ्रेंड्स, एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल, मैंने बता दिया आपको 1945। आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये पता चल जाएगा आपको, हैमलेट, ये लाइन कहाँ से ली गई है, हैमलेट किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, एच.ओ.के.एम, हैमलेट, अथेलो, H.O.K, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो वहाँ से हैमलेट मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे क्या है, नाम भी हैमलेट है और करेक्टर का नाम भी हैमलेट है। आपको मैंने वहाँ पे बताया था रोमेंडी क्लेब का एग्जाम्पल, अब इससे पहले वाली वीडियो में। तो आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड बनने के लिए, टू बी काइंड मुझे क्या बनना पड़ेगा, क्रूएल बनना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप ही लगाइए, पॉसिबल है क्या, अगर मैं देखिए काइंड बनना चाहता हूँ, मैं दयालु बनना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को क्रूएल बनना पड़ेगा, ठीक है। पहला कह रहा है आई मस्ट बी क्रूएल, मुझे क्रूएल होना चाहिए या क्रूएल बनना होगा, ठीक है, ही चाहिए, ठीक है, मस्ट का यूज आपने पढ़ा होगा, टू बी काइंड बनने के लिए। ये क्या है, पहला हाफ आप देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा, मस्ट बी क्रूएल है कैसे बनने के लिए, काइंड बनने के लिए। अब फ्रेंड्स दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखिए ऑल सम, क्रूएल, काइंड, अपोजिट यहाँ पे भी हैं, एंटीथेसिस में भी थे। लेकिन एंटीथेसिस में क्या था, जो पहला क्लॉज था दूसरा क्लॉज उसके एंटी जा रहा था, अगेंस्ट जा रहा था, बट यहाँ अगेंस्ट जाने वाली तो कोई बात नहीं है ना, यहाँ पे वही चीज़ रहना है लेकिन वो बनना है उसके लिए, ठीक है। जैसे मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड रहने के लिए क्रूएल बनना होगा, ऐसा तो नहीं कह रहे कि वो काइंड है वो क्रूएल है ऐसे। तो पहले एंटीथेसिस में अगेंस्ट जा रहा है, एंटी वर्ड से आपको क्लियर होना है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा, पहला वाला जो है वो दूसरे वाले पे कॉन्ट्रेडिक्ट करेगा कह रहे, लेकिन वहाँ पे क्या जाएगा, अगेंस्ट जाएगा उसके। इसमें लास्ट है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब चाइल्ड है वो फादर हो जाएगा, क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो जो बच्चा है वो क्या है, फादर ऑफ मैन है कह रहे। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, दोनों को कंपेयर करते हैं। वी वुड लाइक टू कंपेयर बोथ पैराडॉक्स एंड एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या है देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये देखिए आप पैराडॉक्स, सॉरी एंटीथेसिस है, एंटीथेसिस यहाँ पे आपको दिया है, टू अपोजिट आइडियाज हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, यानी कि कहीं ना कहीं उसका रीजन भी है, ठीक है। अगर स्पीच इज सिल्वर तो साइलेंस इज गोल्ड, अगर शांत रहना क्या है, सिल्वर के समान है, तो उसकी संज्ञा सिल्वर से की, उसको सिल्वर की संज्ञा दी जा रही है, तो बोलना, अगर बोलने की संज्ञा सिल्वर से की जाती है तो साइलेंस की किससे की जाती है, गोल्ड से। तो अगर बोलना है सिल्वर है तो कहने का मतलब शांत रहना क्या है, गोल्ड के समान है कहने का मतलब। अगर यूनाइटेड वी स्टैंड हम कैसे रहते हैं, हम एक साथ तब रहेंगे कहने का मतलब है जब हम यूनाइटेड रहेंगे, हम जुड़े हुए एक दूसरे से तब रहेंगे जब हम यूनाइटेड रहेंगे, जब जुड़े हुए रहेंगे कहीं। डिवाइडेड वी फॉल, जैसे हम अलग होने का प्रयास करते हैं हम क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं कहने का मतलब। तो कहीं ना कहीं रीजन भी हो रहा है यहाँ पे क्लियर, अगर हम अलग होंगे तो हम बिखर जाएंगे, ठीक। अब जो बात कर रहे हैं यहाँ पे पैराडॉक्स की, पैराडॉक्स में ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सेम। अब देखिए पहले वाले के लिए, पहला वाला जैसे कहते हैं ना डिपेंड करना, तो यहाँ पे डिपेंड वाली सिचुएशन आ जा रही है। देखिए आई मस्ट बी क्रूएल टू बी काइंड, और तीसरा है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सो फ्रेंड्स
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। और इस वीडियो के बाद अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर विश। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम कुछ और बेहतर लेके आपके सामने हाजिर होंगे। सो फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, शेयर करना ना भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।